قوم کا مستقبل سنوارنے والے استاذ کرام، ڈائز پر تشریف فرما، جمہوریت کے علم بردار اور قوم کے آنے والے رہنما، اس حال میں موجود ہر ایک شخص، میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اس شخصیت کو کہ جب 4 سال کی عمر میں کسی اور ملک سے یہاں تشریف لائے تو جب اردو کے لیے کام کرنے کی باری آئی تو الحلال اور البلاغ کی 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی۔ جب کہیں ان کے ویژن کی بات آئی، جب ان کی لیڈرشپ کی کہیں بات آئی تو آج ہندوستان میں IITs، IIM اور یہ سینٹرل یونیورسٹیز کا قیام اور اردو یونیورسٹی کا قیام ایک مثال آپ کے سامنے آتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں مولانا ابوالکلام آزاد کی۔ میں اس شعر کے ساتھ ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن مہندی دوبر پیدا۔ آج یہاں پر جب مجھ سے پہلے میرے بھائیوں نے تقریریں کی تو استاذہ کرام سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور 2 کہیں نہ کہیں پارٹ بنے کہ ایک طرف اسٹوڈنٹ، دوسری طرف ٹیچرز، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد مظہر سبحانی صاحب نے کہا کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی یہی خوبصورتی ہے، یہاں پر اگر وہ ٹالرنس کا جو کنسپٹ تھا بیسیکلی وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیفرنٹ آئیڈیالوجیز آپ کے سامنے بولتی ہیں۔ یہاں پر اگر کانگریس بھی آ کر بولے گی تو اتنا یہاں BJP کا ہے کہ وہ اپنی آئیڈیالوجی یہاں پر آ کے آپ کے سامنے رکھے، کسی اور سیاسی جماعت کو بھی اتنا ہی حق ہے کہ وہ اپنی آئیڈیالوجی آپ کے سامنے آ کے رکھے۔ وہ آپ تک ہے، آپ کس کو مانتے ہیں، آپ کس سے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پڑھی لکھی قوم ہے، یہ نظریات کے اختلافات رکھتی ہے، کسی شخصیت سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ تو میں جب دیکھ رہا تھا تو میں خود آج ایک ٹیچر کی حیثیت سے کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں کام کر رہا ہوں تو میں سوچ رہا تھا کہ میں کس سائڈ سے بولوں۔ تو یہ تھوڑا سا کام کہیں نہ کہیں میرے لیے مشکل ہوا، لیکن ایز اے فارمر اسٹوڈنٹ لیڈر پھر میرے ذہن میں احمد فراز کا وہ شعر آیا کہ میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، کہ میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، اسی لیے جو لکھا تپا کے جان سے لکھا، جبیں کو لوچ کماں کو زباں تیر کی ہے، میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا، کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا۔ آج کافی سالوں بعد موقع ملا آپ سے روبرو ہونے کا، یہ سٹیج پہ دوبارہ بولنے کا۔ جب میں پہلی بار 2018 میں آیا تھا تو حالات ایسے بنے کہ آپ کے لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے مجھے سامنے کیا کہ آئیے الیکشن لڑیے، تو میں جب سٹیج پہ الیکشن اس وقت پریزیڈنشل سپیچ ہوئی تھی تو میرے جو دوست تھے، جو میری سپورٹ میں لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ تقریر کی تیاری کریے۔ تو میں بیٹھ کے ایک کمرے میں سوچ رہا تھا کہ جب اپنے لوگوں سے کبھی انسان بات کرتا ہے تو اس میں تیاری کیسی کرنی ہے، تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو میں ایسے ہی اٹھا 2-4 اشعار لکھے اور یہاں آیا اور میں نے یہ چیز سوچی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ سٹیج کا موقع دیا ہے اپنی بات رکھنے کا تو میں جو بولوں گا سچ بولوں گا، وہی بولوں گا جو مجھ سے ہو سکے گا، اور جو دل میں درد اپنی قوم کو لے کے ہوگا وہی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور آج بھی یہی چیز سوچ کر اس سٹیج پہ دوبارہ آپ کے سامنے آیا ہوں، کیونکہ جب اپنے لوگوں سے آ کر کوئی بات کرتا ہے تو وہاں کی تقریروں کی تیاریاں نہیں کی جاتی، وہاں وہی جو آپ کے سینے میں ہے، جو میرے سینے میں ہے، میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اور چند چیزیں جو آج دیش کے حالات بنے ہوئے ہیں، جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے حالات، جو ٹاپک ہے ہمارا، میں اس پر روشنی ڈالوں گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک تھا اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم اینڈ شرنکنگ کیمپس اسپیسز۔ تو جب یہ ٹاپک میں نے دیکھا، سب سے پہلی کسی شخص کا نام اگر میرے ذہن میں آیا تو مجھے لگا کہ جب 2018 میں ہم نے اسٹوڈنٹ یونین کا جب شروعات کی تھی تو یہیں اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہے جامعہ کا ہونہار اسٹوڈنٹ لیڈر جو پچھلے کئی سالوں سے جیل میں بند ہے، میران حیدر، تو میرے ذہن میں وہ شخص آیا کہ میں قوم کو بھی یاد کروا دوں کہ کہیں کوئی ان کو نہ بھول جائے۔ میرے ذہن میں JNU سے گم ہونے والا نجیب احمد آیا کہ کہیں قوم اس کو نہ بھول گئی ہو۔ میرے ذہن میں عمر خالد آیا، میرے ذہن میں نجیب کی ماں کے وہ آنسو جب مانو اور ہندوستان کے ہر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے لے کر ہر سڑک پر بہتے تھے، میری آنکھوں کے سامنے وہ آنسو نظر آئے۔ اور
जुनैद पहलू खान और किसी जेल में बंद संजीव भट्ट जो गुजरात में आपकी लड़ाई लड़ता था, जो आपकी वहां पर आवाज उठाता था, तो मेरे जहन में ये लोग आए, मेरे जहन में रवीश कुमार आए कि कोई आज भी है कि जो किसी स्टेज से आपकी बात रखता है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मेरे जहन में आए, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि क्या हकीकत में हिंदुस्तान के हालात बदल गए हैं, क्या हकीकत में हिंदुस्तान पूरा कम्युनलिज्म की तरफ जा रहा है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में खड़े होकर हम तो इस चीज के बानी थे, यहाँ से जो पैगाम जाना चाहिए था, यहाँ से जो सोच जानी चाहिए थी, क्योंकि आज हम शिकवे कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं कर रही, स्टूडेंट ये कर रहे हैं, टीचर ये नहीं कर रहे। तो मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा इदारा है, लेकिन अफसोस ये है कि हमने सर सैयद और मौलाना अबुल कलाम आजाद को भी क्रिटिसिज्म में आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। जो बड़े अफसोस की बात है कि अपनी ही दो शख्सियत को हम उन पे ये क्रिटिसिज्म करते हैं कि कौन अच्छा था कौन बुरा था। दोनों ने अपने अपने हालात में अपनी कम्युनिटीज के लिए बहुत बेहतर काम किया, लेकिन जो स्टेज से मैं आपको चीज कहना चाह रहा हूँ वो ये थी कि क्या पूरा हिंदुस्तान कहीं कम्युनल तो नहीं हो गया। तो फिर मेरे जहन में संजीव भट्ट आते हैं, फिर मेरे जहन में रवीश कुमार आते हैं, फिर मेरे जहन में कहीं दिल्ली की सड़कों पर बोलने वाले कोई मुख्तलिफ चेहरे जो स्टूडेंट एक्टिविज्म के जो आपकी कौम से नहीं है वो आते हैं। तो मेरे जहन में ये चीज आती है कि इस चमन से कहीं ना कहीं वो पैगाम जाना चाहिए था, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। तो आज अगर किसी जगह पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इकट्ठा खड़ी है तो वो सर सैयद की सोच है, लेकिन हम सबको एक अपना फेलियर एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम मौलाना अबुल कलाम आजाद की आइडिया ऑफ इंडिया पे ना ही यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ के टीचर्स ने और ना ही यहाँ के स्टूडेंट्स ने काम किया। हम जितना भी लोगों ने, मेरी एडमिशन हुई 2015 में, मैं तब से देख रहा हूँ कि तब भी दाल में नमक कम था, तब भी दाल में हल्दी कम थी। महराज साहब शायद यहाँ मौजूद है, तब से वार्डन थे तो हमेशा यही चीज सुनते आए होंगे, और तमाम स्टूडेंट लीडर जितने भी थे, तो ये हमेशा से मुद्दा रहा है। आप कल भी जाएंगे, आप देखिए जितना मर्जी कोई एक्सपर्ट क्यों ना हो, आपके घरों में भी ये परेशानी रोजाना कहीं ना कहीं होती है, और ये मसले हल होंगे, वक्त के साथ साथ ठीक भी होंगे। आप इनको ये मुकम्मल ठीक करना भी नहीं कह सकते कि किसी दिन पानी ज्यादा होगा, किसी दिन कोई चीज कैसी होगी, लेकिन इन चीजों से ऊपर उठकर वो जो आइडिया ऑफ इंडिया था मौलाना अबुल कलाम आजाद का, हमें उस पर बात करनी चाहिए, हमें आज उस पर गौर करनी चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि उनका पैगाम क्या था। और यही चीज मेरे हिसाब से मानव को किसी एक प्लेटफॉर्म पे यूनाइट करेगी, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी इंस्टीट्यूशन का जब मकसद एक होगा, तो तब जितने भी स्टेक होल्डर हैं, वो चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो उस ऑब्जेक्टिव पे काम करेगी, उस गोल पे काम करेगी। तो हमें कोई और चीज एक जगह पे इकट्ठा नहीं कर सकती। हमें अगर एक जगह पे कोई इकट्ठा कर सकता है तो वो मौलाना अबुल कलाम आजाद का आइडिया ऑफ इंडिया, वो मौलाना अबुल कलाम आजाद का वो पैगाम की जो कहीं ख्वाब देखा था कि यहाँ पर देश में हर कौम को अपनी मादरी जबान में एजुकेशन दी जाए, और उसी ख्वाब की ताबीर ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कायम हुआ 1998 में। ये ख्वाब शायद 1947 की उस आजादी से पहले देखा हो, लेकिन उस ख्वाब की ताबीर 1998 में हुई। तो आज हम सबको मिलकर मौलाना अबुल कलाम आजाद के आइडिया ऑफ इंडिया को समझना चाहिए। हमारे उस्ताद कराम को ये आइडिया ऑफ इंडिया अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाना चाहिए, स्टूडेंट यूनियन उनको पहुंचाना चाहिए, और हम सबको मिलकर इस चीज पर काम करना चाहिए। मैं जो कैंपस बेसिस पर सभी लोगों ने अपनी बात रखी, अब्दुल्ला आसिम ने बहुत लंबा बोले इस पर, उमर फारूक ने तफसील से इस पर बात रखी। मैं चंद चीजें आपके सामने रखूंगा क्योंकि वो मानव से रिलेटेड हैं। मैं खुद एक मार्शलाइज कम्युनिटी, पहले तो माइनॉरिटी में हम आते ही हैं, उसके बाद मैं खुद एक शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी से आता हूँ। पिछले दिनों में मानव में एक एडवर्टाइजमेंट नोटिस निकला जिसमें शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी के लिए उर्दू का मैंडेट जो था मैंडेटरी, उसको हटा दिया गया। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये पहली पहल थी कि जो मानव के उस मैंडेट पे उंगली उठाने वाली बात थी। अगर एससी के लिए आप उर्दू को हटा देंगे तो कल आपको एसटी के लिए भी हटानी पड़ेगी। अगर आप कल एसटी के लिए हटाएंगे तो आपको ओबीसी के लिए भी हटानी पड़ेगी। कल अगर आप ओबीसी के लिए हटाएंगे तो कल आप अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए भी आपको हटानी पड़ेगी। और ये अल्टीमेटली जो मानव का ऑब्जेक्टिव था, जिस मकसद के लिए इस यूनिवर्सिटी को कायम किया गया था,
वो मकसद मर जाएगा, और जिस दिन ये मकसद मर गया, ये तादाद जो आज आप इन हालों में ढूंढ रहे हैं कहीं आपको नहीं मिलेगी। तो हालों में, इन आवानों में तादाद नहीं मिलेगी। आप इस कैंपस के चार दीवारी के अंदर भी ढूंढेंगे तो कोई उर्दू पढ़ने वाला आपको नजर नहीं आएगा। जब मैं कौम की बात करता हूं तो मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता। जब यहाँ पर मैं कौम की बात करता हूं तो उर्दू को पढ़ने वाला हर एक फर्द, वो किसी भी मजहब से हो, वो किसी भी कौम से हो, वो किसी भी जात से हो, मैं उसकी बात करता हूं। अगर इतनी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां पूरे हिंदुस्तान में कायम की गई हैं, अगर आपके पास टोटल 60 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं डिफरेंट जगह पे, तो अगर एक उर्दू यूनिवर्सिटी है तो वो नॉन उर्दू बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए, वहां टीचरों के लिए एम्प्लॉयमेंट हासिल करने के लिए उन सब बाकी जो 59 यूनिवर्सिटीज हैं मौजूद हैं, लेकिन उर्दू वालों के लिए सिर्फ एक है। आप इसका मैंडेट उनके लिए चयन न करो कि जिनके पास बाकी वाले ऑप्शन हैं। आपको इसका मैंडेट के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। और मेरी ये गुजारिश रहेगी कि यहाँ पर लोग जो मौजूद हैं, उस्ताद इकराम जो मौजूद हैं, स्टूडेंट लीडर्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो मौजूदा स्टूडेंट यूनियन का पार्ट है, वो ये बात वाइस चांसलर साहब तक रखेंगे और इस बात पे कहीं ना कहीं गौर करेंगे। दूसरी बात जो मेरे सामने आई कि पिछले साल तकरीबन 40 स्टूडेंट्स को यहाँ पर सस्पेंड किया गया, उनको रेस्टिगेट किया गया और यूनिवर्सिटी से निकाल कर उनको एडमिशन नहीं दी गई। लेकिन मेरे हिसाब से किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी स्पेस है, ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे डेमोक्रेसी का असल मुजाहिरा होता है। यहाँ पे लोगों को आजादी से बोलने देना चाहिए, यहाँ से लोगों को अपनी बात को रखने देना चाहिए। और मुझे इस चीज पे भी यकीन है कि इस चीज पे भी हम सब लोग मिलकर गौर करेंगे। ये मेरी तनकीद नहीं है, ये मैं सिर्फ ये पैगाम इसलिए देना चाहता हूँ कि जो जाती मेरा एक्सपीरियंस है एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट, जो चीजें मेरे सामने आई उनको हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए, हम सबको डील करना चाहिए। और अल्टीमेटली मकसद सबका एक ही है कि मानव को कैसे बेहतर बनाया जाए, मानव को कैसे नंबर 1 यूनिवर्सिटीज में लाया जाए, यहाँ पे अपनी यहाँ से उठाकर अपनी कम्युनिटीज को कैसे अच्छी लीडरशिप दी जाए। हम जब कौम में जाते हैं तो जाके कौम में रहनुमाओं की तलाश करते हैं कि कहाँ से हमारे लोग निकलेंगे और कहाँ से हम एमपी और एमएलए बनाएंगे। तो वो अगर ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम ऐसी आवाजों को नहीं उठने देंगे, यहाँ पे लोगों को तैयार नहीं करेंगे। जब आप किसी कौम को बनाते हो तो आपको किसी कौम में एक टेलर की जरूरत भी पड़ती है, आपको उस कौम में एक हजाम की जरूरत भी पड़ती है, उसी कौम में आपको एक मोची की जरूरत भी पड़ती है, उसी में आपको एक्टिविस्ट चाहिए, उसी कौम में आपके लोग एकेडमिक्स में भी होने चाहिए, वहीं पे आपको ब्यूरोक्रेट्स भी चाहिए। तो आप अगर हम सब मिलकर ये भी तय कर लेंगे कि यूनिवर्सिटी से हमारे लीडर निकलेंगे, यही पढ़े लिखे लोग हमारे सामने आएंगे, क्योंकि ये सियासत ही एक ऐसी चीज है जो आपके बच्चों का मुस्तकबिल बनाएगी। यही वो चीज है जिसको हम इग्नोर करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जब आपकी एजुकेशनल कोई पॉलिसी बनती है तो बैठे हुए सरकार में लोग बनाते हैं उनको। जब आप जायज लोगों को वहां पर इलेक्ट करके भेज देंगे तो वो पॉलिसी कभी आपके बच्चों के लिए ठीक नहीं होगी। फिर वही बात आएगी कि प्याज का दाम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मेरे घर में कोई प्याज नहीं खाता और मुझे इससे क्या करना है। आपको इसी चीज को तब्दील करना है, आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लोगों को तैयार करना है। यहाँ से जो अपने लीडर्स जितने आज स्टेज पे बैठे हुए हैं इनको तैयार करना है, इनको मौका देना है। और एक चीज मैंने एक बार किसी की रवायत सुनी थी कि जिसको अल्लाह ताला इज्जत दे उसको आप भी इज्जत दिया करें। आज अगर स्टेज पर नई स्टूडेंट यूनियन आपके सामने इलेक्ट होकर आई है तो आपको और मुझे, हम सबको इनको इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने इनको वोट देकर स्टेज पर पहुंचाया है। हो सकता है कुछ चीजें इनसे गुस्ताखियां भी हुई हो सकता है किसी चीज को इनको करने का इनका तरीका ना आता हो। मुझे भी लगता है कि जिस दिन पहले मैं स्टेज पर चढ़ा था तो मुझे भी मैं आवाज लड़खड़ा जाती थी। शायद आहिस्ता आहिस्ता वो सब्र भी आया, वो चीजें भी आई, लेकिन मुझे लगता है कि आज से हो सकता है 10 साल बाद ये चीज बेहतर हो। अगर आपकी स्टूडेंट यूनियन में कोई कमी है या बहुत बेहतर काम कर रही है, आपको एज ए सपोर्ट इनके पीछे खड़ा होना है। वो ताकतें जो आज आपकी तरफ देख रही हैं उनके सामने उनको आपने कोई गलत पैगाम नहीं देना, उनको मैंने कोई गलत पैगाम नहीं देना। तो हम सब एक प्लेटफॉर्म पे जब तक खड़े नहीं होंगे, हम सब लोग जब तक उस आइडिया ऑफ इंडिया ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद पे काम नहीं करेंगे, अगर हम सब मानव के स्टेक होल्डर उसको अपना मकसद नहीं बनाएंगे, अब यकीन मानिए 10 साल बाद भी हो सकता है मुझे भी बुलाया जाए और फिर आके मैं इसी मौजू पे तकरीर करूं। लेकिन अगर हम एक पढ़ी लिखी कौम है तो हमें एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने के बजाय, हमें एडमिनिस्ट्रेशन, हमें टीचर्स, हमें स्टूडेंट्स को कोसने के बजाय क्यों ना हम एक स्टेज पे आ बैठे और हम इस चीज पर गौर करें और हम इस चीज पर गौर करके अपनी कौम को मुस्तकबिल को बेहतर करने की कोशिश करें। क्योंकि हमारा जो पैगाम था
हमारा जो पैगाम था, मैं ये नज़म आज की स्टूडेंट यूनियन और आज के बाद में आने वाली जितनी भी स्टूडेंट यूनियन है उनके नाम करना चाहूंगा, क्योंकि जब कोई स्टूडेंट यूनियन इलेक्ट होती है तो एक ही साल में सारे काम नहीं हो जाते। मैं जब इलेक्शन लड़ा तो मुझे भी लगता था कि एक साल में इनकलाब बर्पा हो जाएगा, तो मुझे ये लगता है कि हो सकता है 10% काम मैंने किए हो। जब हमारे बड़े भाई अफरोज साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है, जब पहली यूनियन बनी थी तो थोड़े काम उनने किए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यूनियन बनती चली गई तो थोड़े थोड़े काम होते गए और ये मानू का कारवां इसी तरीके से आगे चलता गया। आज के बाद भी लोग आएंगे, बहुत सारी कमियां रहेंगी, कभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कभी काम मुकम्मल नहीं होते। इसको जितने आप काम करते रहोगे आपको नए काम मिलते जाएंगे, क्योंकि वो मकाम जिसमें अभी हमने पहुंचना है वो बहुत दूर है। अभी हमने सबने कोशिशें करनी है। दशरथ कुमार साहब की ये नज़म आपकी आज की यूनियन और आने वाली यूनियन के नाम करूंगा कि हो गई है पीरो पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीरो पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने ही सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मैं इसी नज़म के साथ एक बार फिर से मानव स्टूडेंट यूनियन का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने मौका दिया यहाँ पर आकर अपनी बात रखने का, और आप सब लोगों का भी मशहूर हूँ। यहाँ के जितने भी स्टेक होल्डर हैं, मानो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर मौजूद, टीचर हजरात, बाकी लोग जो इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, बाहर से आए हुए तमाम इसी मेंबर्स, मैं उन सब का मशहूर हूँ कि आपने इतना अपना वहाँ से कीमती वक्त दिया, आप यहाँ पर आए। और मानो स्टूडेंट यूनियन का इसलिए मशहूर हूँ कि उन्होंने हमें बुलाया यहाँ पर अपनी बात रखने का। लेकिन फिर से आपके सबके सामने मैं एक ही पैगाम देके जाऊंगा कि जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का पैगाम था उस पर गौर करें, आप भी गौर करें, मैं भी गौर करता हूँ। जब हम एक प्लेटफॉर्म पे होंगे उस मकसद के लिए काम करेंगे, यकीन मानिए कि हकीकत में वहाँ तरक्की गिरेगी। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।